Hello dear students, welcome back. Today we are going to learn class 11's Hornbill book 3rd chapter Discovering Tut, the saga continues, written by A.R. William. So what is Tut? Tut is the name of last empire of Egypt. His name was Tutankhaten and later he changed his name and wrote himself Tutankhatemum. So he died in his teenage and was buried with lots of gold, precious stones and so many things in his tomb in 3,300 years ago. And later the archaeologist and the one of the famous archaeologist, his name was Howard Carter. He would like to discover his tomb in 1922 and later in 2005, 5th January 2005, that all the archaeologists would like to take him out from his tomb from 26 feet down, buried with beautiful pieces of gold, pearls and precious stones, and that his body was taken out for CT scan for symmetry, and tourists from all around the world would like to see his tomb. And that time when his tomb was taken out from 26 feet down from the earth, dark furious cloud appeared in the sky and all were in the doubt about that something will be mishappening, something unfortunate will be going to come. And a CT scan machine scanned the mummy from head to toe, and there are 1700 x-rays goes in all the sections of the body. Once these scanners had quit because the sent in fan but the substitute fans were worked, and result were studied and debated for the archaeologist and radiologist and anatomy department, and the body was rest and mummy was sent back to its place and rested in peace with the god afterlife or Osiris. So here I am going to give you word to word explanation, difficult words meanings and expressions given in the lesson. So let's start with the lesson. What is Tut? Tut is the name of that empire who was belonging to Egypt. His full name was Tutankhaten. Later he changed his name as Tutankhatemum. Okay, so it is the short form of his name Tut, and he was the empire of Egypt. So here we will find some expression words also. I will explain it when we'll go through the lesson. And this lesson is written by A.R. Williams. Okay, so let's start. So this is the empire Tut, and it is the story of about his mummy. What that earlier time in Egypt, what the people were doing, they kept the person after his death in a form of mummy. So this empire was just a teenager when he died. The last heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibly. What happened? This empire Tut was died in earlier age. जब वो बहुत छोटा था, टीनेज एज में था, तभी उसकी डेथ हो गई थी और वो इस पूरे एम्पायर का लास्ट वारिस था इस फैमिली का. एंड ही वॉज रूल्ड ओवर द इजिप्ट एम्पायर. और इजिप्ट में कई सालों से, कई सेंचुरीज से जो एम्पायर चले आ रहे थे, उसका ये लास्ट वारिस था. ही वॉज लेड द रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगटन. उसको गोल्ड से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो जब वो मरा तो उसको गोल्ड की ही मम्मी में दफन किया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. 1922 में फिर से उसका जो टॉम था, जिसमें उसको सेफ करके रखा गया था, उसको फिर से सर्च किया गया ये जानने के लिए कि उसकी डेथ कैसे हुई. बस सबको ज़्यादातर ये लग रहा था कि शायद उसका मर्डर हुआ हो, तो उसको फिर से फाइंड करने के लिए कि किस प्रकार उसकी डेथ हुई, उसकी मम्मी को उसके टॉम से बाहर निकाला गया और उसकी जांच की गई. नाउ लिविंग his tomb for the first time in almost 80 years, Tut was undergone a CT scan that offered new clues about his life and death and provides precise data
for an accurate forensic reconstructions for boyish pharaoh. 80 साल बाद, उसकी डेथ के 80 साल पूरे होने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके टॉम से बाहर निकाला गया, उसका सीटी स्कैन किया गया और उसकी जो उसका जीवन था और उसका जो किस तरह से उसकी डेथ हुई, उसको पूरा डाटा निकालने के लिए, उसका प्रिसाइज डाटा निकालने के लिए फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के जो हेड थे उन्होंने इसको बाहर निकाला फाइंड करने के लिए कि किस प्रकार से उसकी डेथ हुई है। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है साइंटिफिक मेथड फॉर इन्वेस्टिगेशन। उसकी जो डेथ हुई है, उसको किस तरह से डेथ हुई थी, उसका फिर से फॉरेंसिक साइंटिफिक तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि टट जो था वो बहुत पावरफुल फैमिली का लास्ट रूलर था इजिप्ट का और बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ किस प्रकार से हुई थी, ये एक मिस्ट्री थी और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया। द डिस्कवरी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। लेट्स गो कंटिन्यू. An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark belled cloud had scattered across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005, the world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. 3,300 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी थी और अब उसकी बॉडी को टॉम से बाहर निकाला गया था। किस लिए? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस के लिए। तो जब उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया, बहुत तेज़ हवा, डस्ट के साथ बहुत तेज़ हवा चलने लगी। इट वॉज अ घोस्टली डस्ट डेविल एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जहाँ वो रखा गया था उसको, जहाँ से 26 फीट बिलो दी अर्थ उसको गाड़ा गया था। तो जब उसको बाहर निकाला गया, बहुत तेज़ धूल के साथ हवा चलने लगी, मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया उसके टॉम को। So here scudded across means move along and fast and smoothly. When mummy was taken for CT scan, there was a sudden change in the atmosphere and dark cloud travel. बहुत गहरे बादल छा गए, बहुत तेज हवा चलने लगी, है ना। तो ये कब हुआ? ये 5 जनवरी 2005 को हुआ था और ये वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी थी जो उसको सीटी स्कैन के लिए बाहर निकाला जा रहा था, ठीक है, जिसकी डेथ कब हुई थी? 3,300 साल पहले हुई थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. पूरे आसपास के देशों के टूरिस्ट, पूरी दुनिया से लोग उस क्रैम्पेट को देखने के लिए, उस टॉम्ब को जो 26 फीट अंडरग्राउंड अर्थ में दबा हुआ था, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको देखने के लिए सब इकट्ठा हुए थे। दे गेज्ड at the mural on the wall of burial chamber and peered at Tut's glide face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. सबका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर था। टॉम जब बाहर आ रहा था तो उस चैम्बर में सबका ध्यान था टट के ग्लाइडेड फेस के ऊपर कि वो कैसा दिखाई देता है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ ममी। और उस पूरे गोल्ड कॉफिन लीड में जो ममी था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो था वो टट का फेस था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teen, or wondering with a shiver if the pharaoh curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. बहुत से लोग जो गाइड बुक्स लिखी हुई थी उसको पढ़ रहे थे कि मम्मी के बारे में क्या लिखा गया है, उसको देखकर, बुक को देखकर वो कंपेयर कर रहे थे। कुछ लोग बिल्कुल साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या होने वाला है। कुछ लोगों को इस बात का डर भी था कि मे बी सम मिसफॉर्चून
हैपन, कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि जब जब किसी ने कोशिश की उस मम्मी को निकालने की तो कुछ न कुछ मिसफॉर्चून जरूर हुआ। तो सभी लोगों को इस बात का डर लग रहा था कि मे बी सम मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु विल डिस्टर्ब द मम्मी of Tut. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. सबसे पहले कार्टर हवास जो सिटी स्कैनर था उसने सबसे पहले मम्मी को 1920 में देखा था और उसने कोशिश की थी उसको निकालने की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। और उस समय उसने यहाँ बहुत प्राचीन जो चीज़ें होती हैं उसको खोज करता था हमेशा, तो उसने सोचा कि मैं इस मम्मी को भी बाहर निकालूं और इसको ऑब्जर्व करूं, इसका एनालिसिस करूं, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल. So Carter Howard Carter, that is, was the British archaeologist who is in 1922 discovered Tut's tomb after a year of futile searching. और फिर कुछ सालों बाद 1922 में वो सफल हो गया टट की मम्मी को ढूंढने में. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection for found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold. Their eternal brilliance mean to guarantee resurrection, cause a sensation at the time of discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he had worn in the afterlife: board game, bronze razor, linen undergarments in case of food and wine. So next time जब हावर्ड कार्टर ने इसको 1922 में इस टॉम को खोजने की कोशिश की और वो सफल रहा, तब उसने देखा कि जो टॉम है वो बहुत सी रॉयल चीज़ों के साथ बरीड किया गया था. उसका फेरो जो था, मम्मी था, उसको बहुत सारी प्रीशियस थिंग्स जैसे प्रीशियस गोल्ड, पर्ल और उसके जो कुछ नीड्स की चीज़ें थी उसको भी उसके साथ में बरीड किया गया था, जैसे बोर्ड गेम और ब्रॉन्ज इरेजर्स और सम उसके यूजफुल गारमेंट्स और जो भी उसकी प्रीशियस चीज़ें थी, फूड, वाइन, सब कुछ उसके साथ बरी किया गया था. After a month of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his 3-nested coffin. Opened the first. जो कॉफिन था वो 3 लेयर में कवर किया गया था. He found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petal and cornflower, the faded evidence of burial in March or April. ये सारी जो चीज़ें दिखाई दे रही थी कॉफिन के अंदर, जैसे लोटस पेटल, कॉर्नफ्लावर और फेडेड एविडेंस ऑफ ये ऑलिव ऑयल और गार्लैंड ऑफ विलो, ये सारी चीज़ें मार्च और अप्रैल के मंथ में ही पाई जाती थी. तो हो सकता है कि इसकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई हो. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. जैसे ही उसने मम्मी को देखा तो कुछ कठिनाइयाँ उसको महसूस हुई. The ritual resign had hardened cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force and could move them. Carter wrote later what was to be done. उसने बहुत कोशिश की, लेकिन एक मुश्किल आ रही थी कि उसकी जो बॉडी थी वो गोल्ड कॉफिन के साथ में चिपक गई थी अच्छे से. क्योंकि क्या होता है, मम्मी जब दफन करते हैं तो उसके साथ में रेजिन डाला गया था. रेजिन होता है गोंद, पेड़ का गोंद होता है, अच्छी तरह से सीमेंटिक हो जाए और उसमें किसी प्रकार के कोई कीड़े या फिर कोई खराबी ना आए. तो वो उसके जो रेजिन था, गोंद था, वो बॉडी और गोल्ड के साथ इस तरह स्टफ हो गया था, चिपक गया था कि किसी भी तरह से बॉडी को उससे अलग नहीं किया जा सकता था. और पूरी फोर्स भी उसमें लगा दी जाए तो भी वो अलग नहीं कर पा रहा था. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट. द कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन. और फिर उसकी बॉडी को एकदम हॉट सन में रख दिया गया
इस उम्मीद से कि हो सकता है रेजिन पिघल जाए और उसकी बॉडी को अलग कर दें. Set the mummy outside the blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. Nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. सो बहुत हॉट सन में 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको रखा गया कई दिनों तक, उसके बावजूद भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा. देन व्हाट दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बॉडी को चिजल्ड किया जाएगा, छेनी और हथौड़े से उसको कॉफिन से अलग किया जाएगा. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold. कार्टर हार्वर्ड को लग रहा था कि अगर ये मैंने नहीं किया तो क्या होगा, जो चोर हैं, थीव्स हैं, वो क्या करेंगे, वो किसी तरह से जो गार्ड्स हैं उनको मार के या कुछ करके और जो बॉडी है उससे उसको तोड़ मरोड़ के फाड़ करके और गोल्ड को चोरी करके ले जाएंगे. सरकमवेंटेड करके मीन्स धोखा देकर, जो गार्ड्स हैं उनको धोखा देकर और जो गोल्ड है उसको चोरी कर सकते हैं. So, in Tut's time, the royal were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. उस समय जो टॉट था वो बहुत ज़्यादा रॉयल था, बहुत धनी था और उसने ये सोच के रखा था कि वो अपने साथ इतना सामान लेकर जाएगा. सो दे कुड टेक देयर रीचेस टू देम, और ये चोरों के लिए बहुत आसान था उस तक पहुंचना. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटर गुड precious collar, inlaid necklace, and bracelets, rings, amulet, a ceremonial apron, sandals, sheath for his finger and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. इतनी जो चीज़ें मैंने अभी बोली ये सब प्रीशियस थिंग्स थी और इन सबको गोल्ड से कवर करके कॉफिन के साथ डाला गया था अंदर. To separate Tut from his adornment, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. टट की मम्मी को एक कॉफिन से अलग करने के लिए कार्टर्स के जो साथी थे उन लोगों ने सबसे पहले मम्मी का हेड जो है उसको अलग करना शुरू किया. Once they had finished, they reassembled the remain on the layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rest. सारी चीज़ें उन्होंने एक बारी सर्च करने के लिए मम्मी से अलग की और फिर वापस से उसको रीअसेंबल्ड कर दिया सारी बॉडी पार्ट्स को, और फिर एक वुडन बॉक्स में रख के और उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वे काफ़ी हद तक उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे. देवर सब्सटेंशियली मतलब काफ़ी हद तक. इंटरवेनिंग मीन्स हस्तक्षेप करना. तो किस चीज़ में हस्तक्षेप कर रहे थे? फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. कि उसकी डेथ किस तरह से हुई थी, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसकी ये कोई साजिश थी या फिर उसकी नेचुरल डेथ थी. इंटरव्यूइंग मीन्स साजिश करना. तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे ज़्यादा, और किस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे? उसके साथ जो ट्रेजर, इतना सारा धन जो बंधा हुआ था कॉफिन के साथ, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. और वो क्या चेक करने आए थे, जांच किस बात की होनी चाहिए थी कि उसकी डेथ कैसे हुई और क्या वो नेचुरल थी या फिर कोई साजिश थी. तो आर्कियोलॉजिस्ट का भी ध्यान इससे काफ़ी हद तक हट गया था और वे बीच में इसमें हस्तक्षेप करने लगे थे. इट ऑल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और ये मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल हो गया था. मतलब बहुत जटिल समस्या बन गई थी क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा था किसी को कि उसकी डेथ किस प्रकार से हुई, इसलिए इसकी कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही थी. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed the startling fact. इसके बाद जब कार्टर हावर्ड ने
जांच की। उसके बाद 40 साल बाद कार्टर्स के डिस्कवरी के बाद में जो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी फिर से मम्मी का एक्सरे लिया और इस फैक्ट के बारे में जानकारी लेने लगे। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। और उन्होंने एक्सरे लेकर पता लगाया कि चेस्ट और ब्रेस्ट की कुछ बोन्स हैं, जो फ्रंट रिब्स की बोन है वो मिसिंग है। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slice of bread or create a three-dimension virtual body. What more would be CT scan reveal after than the X-ray? उस समय तो केवल एक्सरे किया जा सकता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके द्वारा सीटी स्कैन में कई लेयरों में एक्सरे किया जा सकता है। तो उस समय ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। दो क्वेश्चंस इसमें उठ रहे थे। हाउ डिड ही डाई, वो किस तरह मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो सीटी स्कैन करने और एक्सरे करने का मेन उद्देश्य ये था कि उसकी जो बॉडी की जो मसल्स हैं, लेयर्स हैं, उससे कुछ डीएनए से पता लगाया जा सके कि उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई और वो मरने के समय पे क्या एज का था। किंग टर्ट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट. Even by royal standard, he was last of his family's line, and his funeral was the death rattle of dynasty. But the particular of his passing away and its aftermath are unclear. जो टिंग टट था, उसकी मृत्यु, एक रॉयल फैमिली का वो लास्ट वारिस था, तो उसकी मृत्यु सभी के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई थी। एंड उसका जो फ्यूनरल था, फ्यूनरल वॉज अ डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, उस पूरी विरासत का आखिरी वारिस था जो जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिस पासिंग अवे ऑफ हिस आफ्टरमेथ आर अनक्लियर। उसके बाद किसने राज्य किया, ये किसी को भी पता नहीं है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty golden age. डायनेस्टी मीन्स राजवंश। तो जो टट के फादर और ग्रैंडफादर थे, वे 18th सेंचुरी के सबसे पावरफुल राजा थे। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period of the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten, and servant of Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to new city of Akhenaten, known now as Amarna. तो जो फोर्थ राजा था टर्ट्स के ग्रैंडफादर में, उन्होंने अपना जो राजधानी थी उसको इजिप्ट से चेंज कर लिया था। और जो नए राजा बना था, उन्होंने सूर्य, जो सन डिस्क होती है, सूर्य को अपना सूर्य की वर्शिप करते थे वो, और उन्हीं के नाम से उन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा था एखेनेतन, जो कि क्या कहलाता है, सूर्य का सर्वेंट ऑफ एटन, इस तरह से। सो द न्यू सिटी ऑफ Akhenaten, नोन नाउ एज अमरना, आज वो किस नाम से जाना जाता है, अमरना नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेज and closing his temples. It must have been a horrific time, and says Ray Johnson, director of the University of Chicago Search Center in Luxor, the site of ancient Thebes. This family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went to a little vacay. ये जो फोर्थ राजा था एखेनेतन, उसने अपनी राजधानी को भी चेंज कर लिया था, जो आजकल अमरना के नाम से जानी जाती है। और ये एक बहुत चौंकाने वाला फैक्ट था कि उन्होंने अपने जो रिलीजियस गॉड है एमन, उनकी जो इमेज है उसको भी तोड़ मड़ोड़ करके और टेम्पल्स को तोड़ दिया था। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था। ये सब कौन बता रहा है, ये रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर लग्जर की जो हेड है, वो ये सब चीज़ें सर्च करके बता रहे थे। एक से दूसरी सेंचुरी में उनकी जो फैमिली का जो एक के बाद एक पतन होता जा रहा था, ये बहुत निराले तरीके से हो रहा था।
After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and excited with hardly a trace. बहुत कम समय के लिए एखेनातेन की जब मृत्यु हुई उसके जस्ट बाद बहुत कम समय के लिए और बहुत मिस्टीरियस टाइप से एक नया राजा आया स्मेनकैकेर। बहुत कम समय के लिए वो राजा था और उसके जस्ट बाद एंड देन अ वेरी यंग तुतेन खातेन took the throne king Tuts as he is widely known today। और आज जिसकी मम्मी का सर्च किया जा रहा है उस ये राजा बना उसके जस्ट बाद तुतेन खातेन। बॉय किंग सुन चेंज्ड हिज नेम टू तुतेन खातेमम और उसने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया तुतेन खातेमम। लिविंग इमेज ऑफ एमन, इसका मतलब होता है एमन का जागरूक रूप। And oversaw a restoration of old ways। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly। उसने 9 सालों तक राज्य किया। रेन मीन्स राज्य करना। अपने राज्य को 9 सालों तक उसने संभाला और अनएक्सपेक्टेडली, किसी को उम्मीद नहीं थी इस तरह से, वो एक दिन मर गया। Regardless of his fame and the speculation about his fact, Tut is one mummy among many of Egypt। तो यहाँ पर सब लोग सर्च कर रहे थे, गेस कर रहे थे कि किस तरह से इसकी मृत्यु हुई और इसके पीछे राज क्या था। तो ये जो इजिप्ट का एक फर्स्ट ममी है जिसके बारे में सभी लोग सर्च करना चाहते थे। हाउ मेनी नो वन नोज, जितने भी राजा हुए सबकी ममीज थी लेकिन किसी को नहीं पता। द इजिप्शियंस ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंटोरी इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इट्स स्टिल काउंटिंग। 2003 तक 600 से भी ज़्यादा ममीज़ को सर्च कर लिया गया और अभी भी काउंटिंग हो रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen। उस देश के लोगों ने सबसे पहली मम्मी जिसका CT स्कैन किया गया वो कौन था? टट था। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-rays images in cross section। CT स्कैन मशीन से मम्मी के सिर से लेके पैर तक 1,700 से ज़्यादा डिजिटल एक्सरेज इमेजेस क्रॉस सेक्शन में ली गई। Tuts had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, text, and airy detail in the resulting images। उसके सिर के पतले पतले 0.62 मिलीमीटर से भी पतली स्लाइसेस में उसको स्लाइस करके उसके सिर की सीटी स्कैनिंग किया गया। और एरी डिटेल मीन्स यहाँ पर जस्ट क्या उसका जो रिजल्ट निकला दैट वाज जस्ट अ फियरफुल एंड वियर्ड। उससे जो रिजल्ट निकला उसके सिर की जो स्कैनिंग की गई वो बहुत ही फियरफुल था। एरी डिटेल मीन्स फियरफुल एंड वियर्ड। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic, and anatomy began to probe the secret that the winged goddesses of a glided burial shrine protected for so long। और उसके पूरी बॉडी का जब स्कैनिंग किया गया और उसका एनालिसिस किया रेडियोलॉजिस्ट ने, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट ने, तो उन्होंने पाया कि अभी तक उसकी बॉडी में जो इस तरह से प्रोटेक्ट किया गया था ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। सो मे बी सम गॉडेसेस आफ्टर लाइफ आर सेविंग हिज बॉडी। द नाइट ऑफ द स्कैन workmen carried Tut from the tomb in his box like pallbearer। They climbed a tram, a flight of stair into swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into trailer that held the scanner। कई मशीनों के द्वारा उसकी सिटी स्कैन किया जा रहा था। उसके टॉम को, उस बॉक्स को साफ किया जा रहा था जो सैंड से भरा हुआ था। तो कई सारी मशीनों ने एक साथ काम किया, कई सारे फैन लग गए, कूलिंग फैन उसकी सैंड को साफ करने के लिए। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fan। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan। Curse of Pharaoh, joked the guard nervously। जो फेरो से सैंड साफ करने के लिए जिस
से कूलिंग फैन लगाए जा रहे थे तो कई फैन खराब हो गए। उसके बाद एक फिर से प्लास्टिक फैन को अरेंज किया गया और फिर से उसका स्कैनिंग करना शुरू किया गया। तो ये सारी परेशानियां जब आ रही थी तो वहाँ पर जो गार्ड था उसने एक जोक किया कि ये सब उस फेरो का कर्स है, मतलब वो जो मम्मी की जो आत्मा है वो कर्स कर रही है, इस प्रोसीजर को आगे होने नहीं दे रही। Eventually, the substitute fan worked well enough to finish the procedure. और eventually means अंततः, अंत में जो सब्सटीट्यूट फैंस है उन्होंने वर्क करना शुरू किया और पूरी प्रोसीजर अच्छी तरह से संपन्न हुई। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब। सारी प्रोसीजर हो जाने के बाद जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने टट को वापस से उसकी टॉम में रख दिया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had led him so long ago. 3 घंटे की मशक्क़त के बाद सारी प्रोसीजर कंप्लीट हुई और फिर से जो टट की फेरो है उसको रेस्ट करने के लिए उसके टॉम में रख दिया गया और वहाँ फिर से वही गॉडेसेस जो उसकी रक्षा कर रही थी आफ्टर लाइफ फिर से उनके साथ शांति से सो गया। Back in the trail of technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixel and the technician spun and titled it in every direction. Back in the trailer of technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen. जो भी स्कैनिंग लिए गए थे वो सारी स्कैनिंग पिक्चर्स को टेक्नीशियंस ने कंप्यूटर में शो करना शुरू किया। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन। उसके जो हेड का पिक्चर था उसको चारों तरफ से घुमा घुमा करके उसके पिक्सल को जूम करके स्कैटर्ड करके टेक्नीशियंस को घुमा घुमा करके देखने लगे। नेक वर्टिब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लासेस। Other images revealed a hand, several views of rib cage and a transection of skull. ये सारे जो उसके बॉडी पार्ट्स थे, हाथ पैर रिब केज, इन सब की जो ट्रांजेक्शन्स किए थे, स्कल, इन सबको बारी बारी देखने लगे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड। जाही हवास अब उसके सर से प्रेशर हट गया था, वो स्माइल करके आराम से अपनी आर्म चेयर पे बैठ गया। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और उसने राहत की सांस ली और कहा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल पूरी रात सोया नहीं, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। एंड ही सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं बहुत डरा हुआ था पर मैं सोचता हूँ कि अब सब कुछ ठीक है और अब मैं आराम से सो सकता हूँ। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still like death itself in this valley of departed. सारा काम खत्म हुआ। अब उसका जो टॉम्ब है उसको वापस फेरो को वापस टॉम्ब के अंदर रख दिया गया और उस टॉम्ब को डिसेंडिंग करके स्टेयर्स के थ्रू वापस से 26 फीट जो नीचे उसका गड्ढा खोदा गया था उसमें वापस से उसको शिफ्ट कर लिया गया। द विंड हैज स्टॉप, जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो बंद हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। जैसे हम कहते हैं कि डेथ को एक कोल्ड हैंड कहा जाता है, उसी तरह से इतनी ठंडी हवाएं, इतनी कोल्ड एयर चल रही थी जैसे कि मृत्यु खुद वहाँ चल कर आई हो। इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड, जस्ट अबाउ द एंट्रेंस ऑफ टट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. और सब पूरे आसमान के सितारों की जो रोशनी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके टॉम्ब पर जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो इजिप्शियंस के जो गॉडेस हैं, जो गॉड आफ्टर लाइफ कहलाते हैं ओसिरिस, वे उस आत्मा की रक्षा करने के लिए उस किंग बॉय को देखने के लिए, वॉच करने के लिए वहाँ पर आ गए हों। तो ये था
पूरा चैप्टर जो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हिंदी में. So children, you should go through the lesson once by your own. So if you like my efforts, please hit the like button and share with your friends. Thanks for watching.